Hello students, welcome to Educate. Today we'll be studying the second chapter of Themes in Indian History, NCERT class 12th और चैप्टर का नाम है Kings, Farmers and Towns. Now, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर देखा है तो उसमें मोहनजोदारो, हड़प्पा, इन सिविलाइजेशंस की बात हो रही थी. Certain interconnectivities you will get to see in this chapter. Most importantly, जो इसमें टाइमलाइन दी हुई है 600 BC to 600 CE. इस टाइम पे क्या हुआ था? Now what we have studied is 1500 BC में वैदिक पीरियड ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था. Okay? Vedic. The Vedic period had officially started off. Okay? Now, वैदिक पीरियड में जो पहला वेद था वो था आपका ऋग्वेद. ठीक है? आफ्टर ऋग्वेद वी हैड अथर्ववेद, देन सामवेद, फिर यजुर्वेद. एक्चुअली अथर्ववेद लास्ट में आया था, पहले यजुर्वेद. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. ओके? नाउ Vedic period had officially commenced as mentioned before. So there were several developments in different parts of the subcontinent during the long span of 1500 years following the end of the Harappan civilization. This was also the period during which the Rig Veda was composed by people living along the Indus and its tributaries. Okay? Agricultural settlements emerged in many parts of the subcontinent including North India, the Deccan Plateau and parts of Karnataka. दक्कन. अगर हम बात करें, ये इंडिया का मैप इमेजिन कर लेते हैं. थोड़ा रफ बना रहा हूं मैं, आई होप देयर इज नो इशू. ये इंडिया का मैप है, एक तरीके से आप देख सकते हैं. देयर वी गो. इसको आप इंडिया समझ लीजिए. ठीक है. सो वी हैव व्हाट evidence of populations and agricultural settlements in many parts of the subcontinent. North India, पहले पाकिस्तान भी इंडिया में था, उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं. सो यहां पे जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट है, विच इंक्लूड्स दिस एंड दिस, मेजरली पार्ट्स ऑफ दिस. ठीक है? एग्रीकल्चरल बेल्ट. डेक्कन, दक्कन की तरफ हम आते हैं. डेक्कन प्लेटो, पार्ट्स ऑफ कर्नाटक इधर है. Okay? Besides, there is evidence of pastoral populations. I hope this is visible by the way, before I move forward. ये आपको दिख रहा है? Alright. So, besides, there is evidence of pastoral populations in the Deccan and further south. Pastoral populations. Pastors. यानी कि भेड़ बकरी चराने वाले. Alright? Pastoral populations in the Deccan and further south, new modes of disposal of the dead, including the making of elaborate stone structures known as megaliths, emerged in central and south India from the first millennium BCE. In many cases, the dead were buried with a rich range of iron tools and weapons. ठीक है? अब दो तीन चीजें हमें देखने को मिलती हैं. जो पैस्टरलिस्ट थे, जो भेड़ बकरी चराने वाले थे, सदर्न पार्ट एंड सेंट्रल पार्ट में उनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक थी. अनदर थिंग दैट वी नोटिस्ड वाज आफ्टर द डेड, जो उनका डिस्पोजल था, उसके साथ एक और चीज होती थी, उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी. ऑलराइट? उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी जो डेड हो जाते थे, दोज हु यूज्ड टू पास अवे. ओके? द डेड वर बरीड विद अ रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स. अब वन थिंग दैट वी हैव नोटिस्ड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन. फर्क क्या है? फर्क यह है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जब बरी करते थे तो पॉट्स, क्वर्न्स, डेली यूज की चीजें, बिकॉज ऑफ द आफ्टर लाइफ, वर बरीड अलोंग विद द डेड. But now
we see the dead were buried with a rich range of iron tools and weapons. Iron tools and weapons. इनका prevalence अब हमें देखने को मिलता है. From circa 6th century BC, there is evidence that there were other trends as well. Perhaps the most visible was the emergence of early states, empires, and kingdoms. Underlying these political processes were other changes evident in ways in which agricultural production was organized. Agricultural production, political process, ये सारी चीजें भी अब फर्क होने लगी थी. Simultaneously, new towns appeared almost throughout the subcontinent. नए नए शहर आ रहे थे. पहले तो लिमिटेड थे, मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड ऑल अदर साइट्स, बट धीरे धीरे थ्रू आउट द सबकॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा नए टाउन्स का इमर्जेंस देखने को मिल रहा था, नए शहरों का. Historians attempt to understand these developments by drawing a range of sources, inscriptions, texts, coins and visual material. अब ये इन चीजों से हमें देखने को मिलता है. ऐसे समझने की कोशिश करते हैं by drawing a range of sources. inscriptions हैं, चीजें जड़ी हुई पत्थर पे वो हैं, टेक्स्ट्स हैं, कॉइन्स हैं और विजुअल मटेरियल भी है. जैसे कि यहां पे हम देखते हैं मेगालिथ. ठीक है, that is a visual material. All right. As we'll see in this complex process, you will also notice that the sources do not tell the entire story. अब इससे पूरी कहानी भी पता नहीं चलती. However, इस टाइम पे जो नई लैंग्वेजेस की इमर्जेंस थी, लाइक संस्कृत एंड पाली, these things make it very easier, as compared to the one in Mohenjo-daro or Harappa, because of the familiarity of the script and what it was. Language might have been different, but the familiarity of the script that was at that time, देवनागरी थी, तो इस वजह से थोड़ा इजी हो जाता है. All right. So I hope this is visible. Prinsep and Piyadasi. All right. So here we'll read about some of the most momentous developments in the Indian epigraphy. Epigraphy क्या होती है? Oops. What is epigraphy? Study of inscriptions. Okay. This right here is the study of inscriptions. Okay. So Prinsep and Piyadasi took place in the 1830s. जो एपिग्राफी थी, सबसे ज्यादा इसका जो चलन था, इसका प्रमोशन था, it took off in the 1830s. Now this was when James Prinsep, an officer in the mint of the East India Company, deciphered Brahmi and Kharoshti, two scripts used in the earliest inscriptions and coins. Brahmi और Kharoshti. ये थोड़ी एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हैं, even probably as we can say close to the date somewhere around when early Sanskrit texts were compiled and laid down. Okay, he found that most of these mentioned a king referred to as Piyadasi. ये कौन थे पियादासी जी? राजा थे, किंग थे. इंस्क्रिप्शंस में इनके बारे में पता चलता है. मीनिंग प्लेजेंट टू बिहोल्ड. पियादासी, प्लेजेंट टू बिहोल्ड, मतलब जिनसे प्रजा को बहुत ज्यादा प्यार हो. पियादासी का मतलब ये होता है. There were a few inscriptions which also referred to the king as Ashoka. All right. So before moving forward with the story of Ashoka, okay, one of the most famous rulers known from Buddhist texts, King Ashoka, उसके बारे में तुम सबने पढ़ा है. And also Chandragupta Maurya and the Gupta dynasty, we all know about that. Okay, this gave a new direction to investigations into early political history as European and Indian scholars used inscriptions and texts composed in a variety of languages to reconstruct
the lineages of major dynasties that had ruled the subcontinent. ऐसे पता चलता है सबकॉन्टिनेंट में, पूरे पार्ट में, इंडिया पाकिस्तान को मिला करके किस तरीके से राजाओं ने, कौन सी डायनेस्टी, कौन से राजा ने कैसे रूल किया था. ओके, एज अ रिजल्ट द ब्रॉड contours of political history were in place by the early decades of the 20th century. अब ये अर्ली 20th सेंचुरी में जो और डेवलपमेंट्स होती हैं, दैट हैज बीन काउंटर्ड या फिर एडेड अप और लेयर्ड अप बाय द अर्ली डिस्कवरीज एंड स्टडीज और थ्योरीज दैट वर फाउंड रिगार्डिंग द सेम. मूविंग ऑन, subsequently scholars began to shift their focus to the context of political history. अब पॉलिटिकल हिस्ट्री, व्हाई इज दिस टर्म यूज्ड, इसका मतलब क्या है, ये टर्म यूज ही क्यों करी जा रही है, आप जरा इस बात पे ध्यान दें. पॉलिटिकल हिस्ट्री, व्हाई पॉलिटिकल हिस्ट्री? एज वी हैव रेड इन द फर्स्ट चैप्टर, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी बेटर, द पीपल, द वे ऑफ लाइफ of the early humans, as dating as far back as Mohenjo-daro and Harappa, and even at this point in time, a lot of questions seem to have been, unanswered or left in doubt because of the way we do not know how the society conducted itself. If there was any social difference, a social hierarchy, we do not know, we do not know about it. Okay, हमें उसके बारे में पता नहीं है. So political history is something that we need to look at when it comes to ancient civilizations, investigating whether there were connections between political changes and economic and social developments. Okay? It was soon realized that while there were links, they were not always simple or direct. Links थे, लेकिन वो इतने simple, इतने आसान और direct भी नहीं थे. All right? Now inscriptions. The short note, we'll be looking at this. Another point. A lot of students, आप बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हो कि साइड में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, यू सीम टू, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सीम टू नॉट बिलीव, they tend to believe actually that this is not important. This may not hold a lot of weightage, but trust me, it's a part of your syllabus and it will help you understand and comprehend the chapter even better, which you need to do because 12th में बहुत ज्यादा ऐसे questions आने वाले हैं. Moving on. Inscriptions are writings engraved on hard surfaces such as stone, metal or pottery. देखो, अगर हम किसी ऐसी चीज पे लिखते हैं जो बहुत ज्यादा सख्त है, पत्थर है, कोई ऐसी सीमेंट की बनी हुई चीज है, उस पे कोई चीज आप गड़ा करके लिखोगे, उसे इंस्क्रिप्शन कहा जाएगा. ओके? स्टोन, मेटल और पॉटरी, पत्थर की चीज है, लोहे की चीज है, दैट इज इंस्क्रिप्शन. They usually record the achievements, activities or ideas of those who commissioned them and include the exploits of kings or donations made by women and men to religious institutions. अब inscriptions में लिखा क्या होता था, सवाल ये होता है. तो inscriptions में ये लिखा होता था कि आसपास का कोई राजा है, किसी ने दान दिया ये बनवाने के लिए, उसका नाम लिखा होता था. राजा की गाथाएं लिखी होती थी, उनके बारे में, कोई उन्होंने ब्रेव काम किया या कोई उन्होंने दान पुण्य का काम किया, समथिंग दैट दे हैव डोनेटेड, दैट यूज्ड टू बी मेंशन्ड along with donations made by men, women, किसी स्पेशल बंदे ने, किसी इंसान ने बनवाया है, उसके बारे में लिखा जाएगा, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन ने बनवाया है कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करके, वो भी इंस्क्राइब होता था. मूविंग ऑन. Inscriptions are virtually permanent records, some of which carry dates. Others are dated on the basis of paleography or styles of writing with a fair amount of प्रिसिशन. ठीक है, अब कुछ में डेट्स लिखी होती थी, तारीख लिखी होती थी कि भाई इस दिन पे ये बना है, लेकिन अगर नहीं पता चलता, देन देयर आर वेज ऑफ फाइंडिंग इट आउट, बेसिस ऑफ पैलियोग्राफी. पैलियोग्राफी इज व्हाट? स्टडी ऑफ द ट्रेसिंग बैक of हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, उसकी डेट फाइंड आउट करना. ऑलराइट, दैट इज द थिंग. और स्टाइल्स ऑफ राइटिंग विद अ फेयर अमाउंट ऑफ प्रिसिशन, या फिर
उसके लिए बहुत तहकीकात और बहुत डिटेलिंग चाहिए फॉर दैट लेवल ऑफ प्रिसिशन कि पता चल पाए कि कब लिखा गया था. फॉर इंस्टेंस इन circa 250 BC the letter A was written like this. A ऐसे लिखा जाता था 250 BC में. All right. By 500 CE it was written like this. That becomes a very difficult task for historians, scholars, etc. क्योंकि आप एक चीज देखें, अल्फाबेट्स का कॉनोटेशन चेंज हो जाता है. फोनिक्स, phonetics, the way in which they're pronounced and read, that changes, which becomes very tricky. The earliest inscriptions were in Prakrit, a name for languages used by ordinary people. Normal लोग प्राकृत में बात करते थे. All right. Names of rulers such as Ajatasattu and Ashoka, known from Prakrit texts and inscriptions, have been spelt in Prakrit forms in this chapter. प्राकृत एक ऐसी भाषा थी, संस्कृत तो थी, but Sanskrit was something of an elite language, you can say, जिसमें वेद लिखे गए थे. थोड़ी elite language थी, आप ये बात समझिए. Now, you will also find terms in languages such as Pali, Tamil and Sanskrit, which too were used to write inscriptions and texts. ये सारी भाषाएं भी यूज होती थी, बहुत ancient languages हैं ये. It is possible that people spoke in other languages as well, even though these were not used for writing. ठीक है, राइटिंग के लिए उतना यूज नहीं होते थे. ओके, सो द अर्लीस्ट स्टेट्स, ओके, द 16 महाजनपदास. अब महाजनपदास क्या होते हैं? Here is the definition. So, looking at the definition, it says Mahajanpad means the land where a जन मतलब लोग, a group of people, a clan, एक से ज्यादा, एक कबीला, ट्राइब. जनपद, जन यानी कि लोग, a group of people, all right, sets its foot or settles. It is a word used in both Prakrit and Sanskrit. जनपद यानी कि जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उसे जनपद कहा जाता है. ओके, 16th महाजनपद यानी कि कई जनपदों को मिलाकर के एक महाजनपद बनता था. कॉमन सेंस. ओके, द 6th century BC is often regarded as a major turning point in Indian history. क्यों? 6th century BC, याद रखिएगा ये सेंचुरी. Why? इस पे क्वेश्चन आएगा. You should know the timeline. Moving on, is often regarded as a major turning point in early Indian history. It is an era associated with early states, cities, the growing use of iron, the development of coinage, etc. सिक्के, आयरन, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो रही थी. It also witnessed the growth of diverse systems of thought. नए नए thought processes, philosophical, religious, were also emerging. For example, Buddhism and Jainism. Okay? Early Buddhist and Jain texts mention, amongst the other things, 16 states known as Mahajanpadas. Excuse me. Mahajanpadas, 16 states. कई जनपदों को मिलाकर के महाजनपद बनते थे. ठीक है? Although the lists vary, some names such as Vajji, Magad, कोशाल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती occur frequently. All right. महाजनपदों के बारे में 16 महाजनपद. इनमें से अगर आपको सारे याद नहीं होते, मोस्ट ऑफ देम यू मस्ट रिमेंबर. मैप भी आता है कभी कभी इस पे. All right.
क्लियरली दीज वर अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद। सबसे इंपॉर्टेंट ये महाजनपद थे जिनका बार बार मेंशन हमें देखने को मिलता है। ऑल राइट, व्हाइल मोस्ट महाजनपद्स वर रूल्ड बाय किंग्स, सम known as ganas or sanghas were oligarchies where power was shared by a number of men collectively called rajas। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपको बताऊं, ओलिगार्ची आपको पता होनी चाहिए। एंशिएंट ग्रीस, एंशिएंट ग्रीस में सिस्टम पहले फॉलो होता था। Oligarchy. What is an oligarchy? There is no one king. Even if there is a ruler, he is unanimously selected by a group of powerful men. ठीक है? Ancient Rome would be a perfect example. Let me remove the option of Greece. Rome. Julius Caesar. आपने पढ़ा होगा? So what happens is that a group of people, कुछ लोग होंगे बहुत पावरफुल जो सोसाइटी में पोस्ट होल्ड करते हैं, पावर वाले हैं, किसी न किसी शेप और फॉर्म में वेल्दी हैं, वो कलेक्टिवली मिलकर के राजाओं का काम करते हैं। तो उन सबको मिलकर के राजा बुलाया जाता था। सो होता क्या है, कुछ महाजनपद में एक ही राजा था, एक ही किंग था कुछ महाजनपदों में, और जिनको की रूल बाय किंग्स नोन एज गण और संघ। ठीक है, जो किंग थे दे वर रूल्ड बाय बेसिकली, जो सर्टेन प्लेसेस वर रूल्ड बाय किंग्स नोन एज राजास, एंड सम ऑफ देम वर रूल्ड बाय ओलिगार्चीज, अ नंबर ऑफ मैन। ठीक है, गण या संघ, गण या संघ कहा जाता था ओलिगार्ची को, राजा किंग। ओके, both Mahavir and the Buddha belonged to such ganas। ठीक है, महावीर एंड गौतम बुद्ध वो इसी कैटेगरी गण से ही बिलोंग करते थे, गनास। इंपॉर्टेंट, इन सम इंस्टेंसेस एज इन द केस ऑफ वज्जी संघ, वज्जी, ऑल राइट, इट वॉज नॉट एन ओलिगार्ची बिकॉज इट्स अ संघ, इट्स अ महाजनपद। तो the rajas probably controlled resources such as land collectively। मतलब कि अगर हम बात करें ओलिगार्ची, एंशिएंट रोम वाला सिस्टम जिसमें बहुत सारे लोग मिल करके रूल करते हैं, दैट इज वो राजाज होते थे। और अगर एक किंग है तो वो या तो गण होगा या संघ होगा, सिंपल। नाउ द थिंग इज, वज्जी का जो संघ है, वहां के जो राजाज हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सब मिल करके लैंड ओन करते थे। कोई एक राजा नहीं था, कलेक्टिवली सारे लैंड ओन करते थे। ओके, ऑल्दो देयर हिस्ट्रीज आर ऑफन डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज, सम ऑफ दीज स्टेट्स लास्टेड फॉर नियरली 1000 years। अब इनकी जो हिस्ट्रीज हैं वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ सोर्सेज। सम ऑफ दीज स्टेट्स, कुछ कुछ जो स्टेट्स है, कुछ कुछ जो महाजनपद थे, वो हजारों सालों तक विलुप्त नहीं हुए। दे डिडंट वैनिश ऑफ, वो वहीं थे, उनकी एग्जिस्टेंस बरकरार थी। ओके, ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड। किला बना हुआ था, ठीक है, मतलब एक एक राजधानी की कैपिटल सिटी हर महाजनपद के पास थी, जो कि फोर्टिफाइड एरिया था, किले की तरह घेरा हुआ था। मेंटेनिंग दीज फोर्टिफाइड सिटीज एज वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर इंसिपिएंट आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसीज रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अब इन सब की मेंटेनेंस में, आर्मी को पालने में, सब चीजों में देखो रिसोर्सेज तो लगेंगे। ओके, आई होप यू हैव टेकन नोट ऑफ these things. If not, please do take a screenshot if you think it's necessary. All right. Now in this chapter, we are starting off with the social structure up ahead, straightforward, as to what it was like between
600 BC to 6 AD. Okay, 6th century AD. All right. Moving on. Now we look at the map here. ठीक है, ये आपका मैप है. सो अगर आप मैप देख सकते हैं, इफ द मैप इज विजिबल टू यू, अवंती इज राइट हियर, वाराणसी, राजगीर, मगध प्रेजेंट डे बिहार, वैशाली इज पटना, मॉडर्न नेम इज पटना वैशाली का, कुशी नगर, वज्जी या फिर वृज्जी, चंपा, अंगा, वंगा इज प्रेजेंट डे बंगाल, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, शुरसेना मथुरा आपका इधर आ गया, श्रावस्ती इधर, कोशाला काशी, काशी और वाराणसी, राइट. अश्माक उज्जैनी वाज द कैपिटल ऑफ अवंती. तक्षशिला गांधार, ठीक है, तक्षशिला प्रेजेंट डे पाकिस्तान, गांधार पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशिया का कुछ पार्ट. पुष्कलावती was also the capital here, as you can see from the map. Okay, this map is by the way very important. मैप आपको समझ में आ गया तो आपको ही आसानी होगी चैप्टर को और ज्यादा समझने में, को रिलेट करने में, खासकर कि when we talk about trade और war between two महाजनपद्स, okay, और जनपद्स. So moving on. From 6th century BC onwards, Brahmanas began composing Sanskrit texts known as Dharmasutras. Okay? ब्राह्मण जो थे वो संस्कृत टेक्स्ट्स कंपोज करने शुरू कर दिए जो कि जिनका नाम था धर्मसूत्र. These laid down norms for rulers as well as for the other categories. की मतलब एक रूलर के लिए और बाकी कैटेगरीज के लिए who were ideally expected to be क्षत्रियस. ऑल राइट, इनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस, किनके लिए? नॉर्म्स फॉर रूलर्स एज वेल एज अदर सोशल कैटेगरीज. अदर सोशल कैटेगरीज वर आइडियली एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रियस, वॉरियर्स. ओके, राइट डाउन हियर, वॉरियर्स. ओके, रूलर्स वर एडवाइज्ड to collect taxes and tribute from cultivators, traders and artisans. अब रूलर्स को इस धर्म सूत्रों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द धर्म सूत्रस, उनको एडवाइस किया जाता था रूलर्स को टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस. किसानी करने वाले, अनाज उगाने वाले, व्यापार करने वाले, बिजनेस करने वाले या फिर आर्ट का, कला का काम करने वाले आर्टिसंस के लिए उनसे टैक्स कलेक्ट करना चाहिए. वर रिसोर्सेज ऑल्सो प्रोक्योर्ड फ्रॉम पैस्टोरलिस्ट्स एंड फॉरेस्ट पीपल्स. अब ये सवाल उठता है कि ये जो टैक्स है और बेसिकली रिसोर्सेज जो थे एक टैक्स के रूप में, ये क्या ट्राइबल से और पैस्टोरलिस्ट से, जो कि अलग अलग मतलब की जगहों पे भेड़ बकरियां चराते थे, उनसे भी वसूला जाता था? दैट्स द क्वेश्चन. नाउ वी डू नॉट रियली नो, ये भी चीज क्लियर नहीं है. व्हाट वी डू नो इज दैट रेड्स ऑन नेबरिंग स्टेट्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ लेजिटिमेट मींस ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ. सिंपल बात है. उस टाइम पे मान लो, ऑल राइट, नेबरिंग स्टेट्स पे डाका डालना या फिर उन पे रेड करना डाका डालना ही हुआ. मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल वांगा इज हियर, वांगा वांट्स टू रेड अंगा, ठीक है, तो ये जायज माना जाएगा. दिस वोंट बी कंसिडर्ड रॉन्ग, इसको सही माना जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं, कर लो. दैट वॉज अ लेजिटिमेट मीन्स ऑफ प्रोक्योरिंग वेल्थ अपार्ट फ्रॉम टैक्सेस. दिस वॉज अलाउड. आप वॉर कर सकते थे.
ठीक है, रिसोर्सेस के लिए। All right, gradually some states acquired standing armies and maintained bureaucracies, regular bureaucracies and standing armies. कुछ स्टेट्स ने प्रॉपर आर्मीज और ब्यूरोक्रेसी खड़ी कर रखी थी. अदर्स कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन मिलिशिया रिक्रूटेड मोर ऑफन देन नॉट फ्रॉम द पेजेंट्री. मिलिशिया kind of like a civil army, backup army, recruited more often than not from the peasantry. Peasants यानी कि लेबर. Lowest strata of the society. I hope this is visible. ठीक है, एक्सक्लूडिंग स्लेव्स को हटा करके. ठीक है, तो यहां से इनका जो रिक्रूटमेंट है किया जाता था. नाउ डेफिनेशन ऑफ ओलिगार्ची मैंने आपको समझाया था. फॉर्म्स टू फॉर्म रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मेन. द रोमन रिपब्लिक अबाउट विच यू रेड लास्ट ईयर was an oligarchy of its oligarchy in spite of its name. All right, moving on. First among the 16, Magad. Why is the Mahajanpad of Magad considered to be so important or so crucial? All right, ये अभी हम पढ़ेंगे. First amongst the 16, Magad. Between the 6th and the 4th centuries BC. Please note down the timeline. बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको बाद में अगर आपको पता है हिस्ट्री में इफ योर टाइमलाइन शुरू से आप क्लियर लेके चल रहे हो एक स्टोरी के तरीके से, एक सिंक में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो आपको रिवाइज करने की खास जरूरत पड़ती नहीं है. ऑलराइट, डे वन से आपको चीजें क्लियर रहती हैं. 6th और 4th सेंचुरीज बीसी के बीच में मगध, प्रेजेंट डे बिहार. ओके, दैट्स मगध राइट देयर. प्रेजेंट डे बिहार became the most important or most powerful Mahajanpad. How? The reason for this was modern historians explain this development in a variety of ways. Magad was a region where agriculture was specially productive because of the soil and fertility. Now we have noticed after the Indus Valley civilization, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद एग्रेरियन सोसाइटी, एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज और एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा था. एग्रीकल्चरल टूल्स, टेक्नोलॉजीज, नॉट एग्जैक्टली टेक्नोलॉजीज, और द मेथड्स ऑफ फार्मिंग वर इवॉल्विंग. एग्रीकल्चर वाज इंक्रीजिंग इवन मोर स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम, 6th century BC to 6th century CE. All right, so moving on. Modern historians explain that this development in a variety of ways. The agriculture was very productive. Besides, iron mines in present-day Jharkhand were accessible and provided resources for tools and weapons. लोहा. Basically हुआ क्या था? इस टाइम के ब्यूरियल्स में हम ये देखते हैं weapons, military, consolidation, diplomacy, bureaucracy, standing armies and even militia were increasing which needed weapons. अब वेपन कैसे बनेगा? उसके लिए लोहा चाहिए, आयरन चाहिए. आयरन कहां से मिलेगा? प्रॉपरली इसीलिए मगध को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता था बिकॉज ऑफ दीज सेट फैक्टर्स. आयरन माइंस भी थे मगध के एम्पायर में, मगध के किंगडम में. प्रेजेंट डे झारखंड में आयरन माइंस होते थे. ऑलराइट, नाउ
It was accessible and provided resources for tools and weapons. Elephants were an important component of the army. हाथी बहुत यूज होते थे. Elephants were found in forests in the region. Also, the Ganga and its tributaries provided a means of cheap and convenient communication. गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज से चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन भी हो जाता था, ट्रेड होता था, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना, commodities को ले जाना, that became very important. All right. However, early Buddhist and Jain texts also wrote about Magad, attributed its power to the policy of individuals. Now, फर्क यहां जाता है कि जो बुद्धिस्ट और जैन राइटर्स थे अर्ली टाइम के, उन्होंने जो मगध की पावर का रीजन बताया, वो बताया किस चीज को, पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल्स, कि वहां पे कुछ इंडिविजुअल्स इतने ज्यादा बुद्धिमान थे, ऐसी अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाते थे जिसकी वजह से जगह बहुत ज्यादा प्रॉस्पर कर रही थी. फॉर एग्जाम्पल, ruthlessly ambitious kings of whom Bimbisar, Ajatasattu and Mahapadmananda are the best known. Who? Bimbisar, Ajatasattu and Mahapadmananda, and their ministers who helped implement their policies. All right. Later on, अभी तो नहीं, आगे जाकर के इस कई सालों बाद हम देखेंगे कि इसी एरिया में मगध में पाटलिपुत्र था, विच वॉज द लेटर नेम ऑफ वैशाली. वहां पे ऐसे ग्रेट माइंड्स हुए थे. फॉर एग्जाम्पल, द फाउंडर ऑफ अर्थशास्त्र और द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफी, चाणक्य, ऑल्सो केम फ्रॉम हियर. चंद्रगुप्त मौर्य, मगध. सो बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट्स refer the success or attribute the success or the prosperity of Magad to individual policies. For example, policies made by individuals. For example, Ajatasattu, Bimbisar and Mahapadmananda, along with their ministers who helped implement their policies. Initially, Rajgaha, the Prakrit name for present day Rajgir in Bihar. Rajgaha की बात होगी तो राजगीर की बात हो रही है बिहार में, याद रखें. And it is what? A Prakrit name. Was the capital of Magad. ठीक है ना, मगध की राजधानी थी राजगह और राजगीर. All right. Interestingly, the old name means house of the king. House of the king. मगध क्या था? महाजनपद थी, और वहां पे हाउस ऑफ द किंग was Rajgir. Rajgir was a fortified settlement located amongst hills. Later in the 4th century BC, the capital was shifted to Pataliputra, present day Patna, commanding routes of communication along the Ganga river. इसलिए बनाया गया था ताकि गंगा रिवर पे अच्छा सा कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाए, ट्रेड अच्छे से हो पाए. दैट वाज द रीजन. नाउ द हाउस ऑफ द किंग राजगह एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी पहाड़ों के बीच में. लेटर 4th century BC में कैपिटल शिफ्ट हुआ था पाटलिपुत्र में, फॉर द रीजन ऑफ इट्स अटैचमेंट एंड being adjacent to the Ganga river and efficient communication along the river, because it commanded routes, weapons, trade, etc. So this is the first part of the chapter that we have studied till now. Chapter 2 of kings, farmers and towns history में. As I've emphasized this before, आप टाइमलाइन पहले से क्लियर रखें ताकि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम ना आए. थोड़ा सा आप स्किम थ्रू करेंगे, आपको सब याद हो जाएगा. ऑल राइट, टिल देन, थैंक यू, टीम एजुकेट.